کرتے ہیں بلیٹن کا باقاعدہ آغاز۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل جانے کا فیصلہ۔ ڈی ای سی عرفان کوثر کا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط، چیف الیکشن کمشنر کے اثاثہ جات کی تفصیلات مانگ لی۔ سکندر سلطان راجہ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرکے فیصل آباد، لاہور اور سرگودا میں زمینیں خریدی، اختیارات کا ناجائز استعمال کرکے بیوروکریٹس کو پوسٹنگ بھی دلوائی، خط میں الزام۔ الیکشن کمشنر فیصل آباد کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر فیصل آباد نے چیف الیکشن کمشنر کے اثاثہ جات کی تفصیلات مانگ لی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمیشن فیصل آباد عرفان کوثر کا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو خط میں سکندر سلطان راجہ کے چیف الیکشن کمشنر بننے سے پہلے اور اب تک کتنے اثاثے ہیں تفصیلات طلب کی گئی۔ درخواست گزار نے چیف الیکشن کمشنر کے بڑے بیٹے کے اثاثے کی تفصیلات بھی مانگی۔ سال 2022 اور 2023 میں ہونے والی DDWP کی میٹنگ کے منٹس اور PWD کو فراہم کردہ فنڈز کی تفصیلات بھی طلب کی گئی۔ الیکشن کمیشن میں گریڈ 17 سے 21 کے افسران کی سینیارٹی لسٹ کی تفصیلات بھی مانگی گئی۔ تمام معلومات 5 مئی تک فراہم کی جائیں۔ خط میں مطالبہ مبینہ طور پر آئینی ذمہ داری پوری نہ کرنے پر فیصلہ کیا گیا۔ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ مبینہ طور پر اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے بیوروکریٹس کو پوسٹنگ بھی دلوائی گئی۔ مزید یہ بھی الزام لگایا گیا کہ سکندر سلطان راجہ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کرکے فیصل آباد، لاہور اور سرگودا میں زمینیں بھی خریدی ہیں۔ عدالت عالیہ نے فیصل آباد ماسٹر پلان 2041 پر عمل درآمد روک دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں FDA کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت۔ چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ FDA کو نوٹس، جواب طلب کر لیا۔ FDA کے ایکٹ میں فیصل آباد ماسٹر پلان کا ذکر نہیں۔ ماسٹر پلان میں بڑے پیمانے پر زرعی رقبہ شامل کیا گیا۔ ماسٹر پلان سے کئی درختوں کی کٹائی ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ میں فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دائرہ اختیارات سے متعلق کیس کی سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ کا ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے بڑا عبوری حکم جاری۔ عدالت نے فیصل آباد ماسٹر پلان 2041 پر عمل درآمد تا حکم ثانی روک دیا۔ چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ FDA کو نوٹس جاری، جواب طلب کر لیا گیا۔ جسٹس جواد حسن نے شہری شاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ FDA کے ایکٹ میں فیصل آباد ماسٹر پلان کا کوئی ذکر نہیں۔ FDA ایکٹ کے تحت فیصل آباد ماسٹر پلان نہیں بنایا جاتا۔ ماسٹر پلان میں بڑے پیمانے پر زرعی رقبے کو شامل کیا گیا ہے۔ فیصل آباد ماسٹر پلان سے کئی درختوں کی کٹائی ہوگی، ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ ہوگا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت فیصل آباد ماسٹر پلان کا اقدام کالعدم قرار دے۔ کیس کے حتمی فیصلے تک فیصل آباد ماسٹر پلان پر عمل درآمد روکا جائے۔ عوامی سواری غریب کی جیب پر مزید بھاری۔ ہونڈا نے موٹر سائیکلز کی قیمتیں 5 سے 15,000 تک بڑھا دیں۔ ہونڈا 70 5,000 روپے مہنگی 1,54,900 روپے کی ہو گئی۔ ہونڈا 125 7,000 روپے مہنگا 2,29,900 روپے کا ہو گیا۔ عوامی سواری کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ۔ ہونڈا نے موٹر سائیکلوں کی قیمتیں 5 سے 15,000 تک بڑھا دیں۔ ہونڈا 70 cc کی قیمت میں 5,000 تک کا اضافہ۔ ہونڈا 70 cc کی قیمت 1,54,900 روپے مقرر۔ ہونڈا سی ڈریم کی قیمت میں 5,000 کا اضافہ۔ ہونڈا سی ڈریم کی قیمت 1,65,900 روپے مقرر۔ ہونڈا پرائڈر 6,000 روپے مہنگی 2,03,900 روپے مقرر۔ ہونڈا 125 cc 7,000 روپے مہنگی 2,29,900 روپے مقرر۔ ہونڈا 125 cc اسپیشل کی قیمت میں 10,000 کا اضافہ۔ ہونڈا 125 cc اسپیشل کی قیمت 2,75,900 روپے مقرر۔ ہونڈا CB 125F کی قیمت میں 15,000 روپے کا اضافہ۔ ہونڈا CB 120F کی قیمت 3,80,000 روپے مقرر۔ ہونڈا CB 150F کی قیمت میں 15,000 روپے کا اضافہ۔ ہونڈا CB 150F کی قیمت 4,73,900 روپے مقرر۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم سست روی کا شکار۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک صرف 3,35,922 بوریاں خرید سکا۔ چنیوٹ کے 5 سینٹر میں سے 3 نے 100% باردانہ جاری کیا۔ فیصل آباد میں گندم خریداری مہم سست روی کا شکار۔ محکمہ خوراک فیصل آباد اب تک صرف 3,35,922 بوریاں خرید سکا۔ 11 لاکھ گندم کی بوریاں خریدنے کا حد حاصل کرنا مشکل نظر آنے لگا۔ رپورٹ کے مطابق گندم خریداری کی شرح 30% ریکارڈ۔ فیصل آباد سے 1,10,000 میٹرک ٹن گندم خریدنا چیلنج بن گیا۔ کسانوں میں 6,31,862 بوری باردانہ تقسیم ہوا، جس کی شرح 57% ہے۔ تقریباً 11 خریداری مراکز فیصل آباد، دارالحسان، جڑاوالا، بچیانہ، روڈالہ روڈ، جوگ دتا، تانترے والا، سمندری، کنجوانی، مامو کانچن میں خریداری سست روی کا شکار۔
चिन्योट के 5 सेंटर्स में से 3 ने 100% बारदाना जारी कर दिया। मजमूई तौर पर 5 लाख बोरी टारगेट में से 93% बारदाना जारी करके 50% गंदम खरीदे गए। गंदम खरीदारी सेंटर चिन्योट से 49,000 बारदाना जारी, 23,000 बोरी खरीदी गई। चनाब नगर से 1,33,000 बोरी बारदाना जारी, 81,000 बोरी गंदम खरीदे गए। लालिया सेंटर से 1,34,000 बोरी बारदाना जारी, 75,000 बोरी गंदम खरीद ली गई। चक 11 सेंटर पर 29,000 बोरी बारदाना जारी करके 15,000 बोरी गंदम खरीदे गए। जामियाबाद सेंटर से 1,12,000 बोरी बारदाना जारी, 53,000 बोरी गंदम खरीदी गई। टोबा में महकमा खुराक के लिए 11 लाख से ज्यादा गंदम की बोरियां खरीदने का हद। महकमा खुराक के जराये का कहना है कि घरों में जखीरा अंदोजी की वजह से टारगेट पूरा करना मुश्किल हो गया है। ताहम जिला भर में जखीरा अंदोजों के खिलाफ छापामार कार्रवाइयां जारी हैं। इंतजामिया ने 10,000 गंदम की बोरियां जब्त भी की हैं। महकमा खुराक 20 रोज में अपने टारगेट के सिर्फ 33% गंदम खरीद सका है। जिला भर के 7 खरीदारी मराकज में 4.25 लाख बोरियां खरीदी गईं, जबकि जिला में 9 लाख से ज्यादा बारदाना तकसीम किया गया, जिसका तनासुब 82% बताया गया है। सरकार ने गंदम की कीमत 3,900 रुपए मन मुकर्रर की है, जबकि मार्केट में गंदम 5,500 रुपए मन तक फरोख्त की जा रही है। डिवीजन भर में गंदम खरीदारी मुहिम जारी। गंदम खरीदारी में झंग सबसे आगे, लगभग 52% गंदम खरीद ली गई। फैसलाबाद हदफ का सिर्फ 30% गंदम खरीद सका। चिन्योट बारदाना के इजरा में सबसे आगे, 92% बारदाना तकसीम कर दिया गया। डिवीजन भर में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए 41 मराकज कायम किए गए हैं। फैसलाबाद में 11, टोबा में 7, झंग में 18 और चिन्योट में 5 मराकज पर बारदाना की तकसीम और गंदम की खरीदारी जारी है। फैसलाबाद डिवीजन के मजमूई हदफ 53,50,000 में से 27,38,000 से जायद बोरी गंदम खरीदी गई है, जबकि 41 लाख बोरी बारदाना जारी किया गया। डिवीजन भर में 89% बारदाना जारी कर दिया गया। चिन्योट में सबसे ज्यादा 92%, झंग दूसरे नंबर पर 84% बारदाना जारी हुआ। चिन्योट के 5 सेंटर्स में से चिन्योट, चनाबनगर और लालिया सेंटर ने 100% बारदाना तकसीम किया। टोबा टेक्सिंग में 82%, फैसलाबाद में सिर्फ 57% बारदाना जारी हुआ। झंग गंदम खरीदारी में सबसे आगे 52%, चिन्योट 49% और टोबा में 33% गंदम खरीदी गई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत का कहना था कि गंदम खरीदारी का हदफ जल्द मुकम्मल हो जाएगा। अच्छी पैदावार आ रही है और हमें खतरा था कि बारिशों में पैदावार हमारी ज़ाया होगी, लेकिन जो हमने सर्वे किया है, जो जिम्मेदार लेकर आ रहे हैं, तो एवरेज 40 से 50 मन जो है पैदावार लेकर आ रहे हैं। और हमारा इस वक्त जो झांसी में है तकरीबन 40% बारदाना हम इशू कर चुके हैं और 12% तक हमारी खरीदारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। गंदम खरीदारी में भी फैसलाबाद सबसे पीछे रहा, सिर्फ 30% गंदम खरीदी गई। फैसलाबाद ने 11 लाख बोरी के हदफ में से अब तक 3,35,922 बोरी गंदम खरीदी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। आपको बताएं, ईद के बाद मार्केट्स खुल गई। कपड़ा मार्केट्स खुलते ही ताजरों को कारोबार में बेहतरी की उम्मीद। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, गैर का यकीनी से बढ़ने की वजह से मुआशी मसाइल मजीद गंभीर होते जा रहे हैं। गंदम की अच्छी कीमत हासिल हुई तो ग्राहक मार्केट का रुख करेंगे। ईद के बाद मार्केट्स खुलने लगी। 8 बाजारों में गहमा गहमी कपड़ा मार्केट्स के ताजरों ने मार्केट बेहतरी की उम्मीदें गंदम की फसल से लगा ली। मौसम के एतबार से कपड़े की क्वालिटीज में भी बेहतरी आने लगी। स्टेपल 35 की 1,000 बढ़कर 45 से 46,000 हो गई। कॉटन 52, कॉटन 60 पर मुस्तहकम रही, जबकि पीवी की कीमत में कुछ कमी वाक़या हुई। वॉशिंग वेयर 31,500 से कम होकर 30,000 तक आ गई। मेंबर पायमा फैसल मियादाद कहते हैं, गंदम की पैदावार का अच्छा सुन रहे हैं। अब अगर किसान मार्केट्स का रुख करेगा तो कारोबार में बेहतरी आएगी। गंदम की क्रॉप जो है वो अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर हुई है, तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि बड़ी ईद से पहले पहले लोगों ने, हरी बात है, अपनी शॉपिंग वगैरह करनी है, गाहकी भी हमारे पास आएगी, क्योंकि पूरे साल का दारोमदार इसी गंदम के ऊपर होता है। तो मुझे ये लगता है कि कारोबारी एक्टिविटीज बेहतर होंगी और लोग भी जो माशी तौर पे जो बिल्कुल डिप्रेस हुए हैं वो भी कुछ बेहतर होंगे। अदम इस्तेकाम में इजाफे से मौशी अबतरी भी बढ़ती जा रही है और मौशी सरगर्मियां सुकड़ती जा रही हैं। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। ज़िला इंतजामिया की अदम दिलचस्पी। यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ देने में नाकाम। ईद के बाद फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की शदीद किल्लत। आटा, घी, चावल, बेसन सब नायाब। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। ईद उल फितर के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया खुर्दोनोश की शदीद किल्लत पैदा हो गई। रियाज शाहिद पर वाक़ई स्टोर पर आटा सस्ता, घी, बेसन और चावल नायाब हो गए। शहरियों को एशिया के हसूल के लिए मुश्किलात दरपेश हैं। शहरियों का कहना था कि सामान खरीदने आए हैं मगर आटा मिलता है ना घी। भाई सुबह से 3-4 चक्कर लगा चुके हैं, कभी कहते हैं आते हैं, कभी कहते हैं देते हैं, लेकिन दे नहीं रहे, सामान नहीं दे रहे, ना चीनी, ना घ्यो, ना आटा, कुछ भी नहीं दे रहे।
सस्ता सामान खरीदने आए शहरियों ने मजीद कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स पर एशिया की जायद कीमतें वसूल की जाती हैं। इसके बावजूद जरूरत की एशिया यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं होती। इधर यूटिलिटी स्टोर पे सहूलत वगैरह लोग देते हैं हुकूमत वाले, तो ये सहूलत वगैरह दे नहीं रहे, चीज़ें वगैरह महंगी दे रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे, बकाया स्टोर में रखा कहते है नहीं हमारे पास। शहरियों ने मुतलका हुकाम से यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फ्राहमी यकीनी बनाकर हकीकी रिलीफ फ्राहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। टोबा टेक्सिंग में दुकानदारों की मनमानियां अरूज पर, जिला इंतजामिया सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त कराने में नाकाम। दुकानदारों का नरखनामे के मुताबिक चीनी फरोख्त करने से इनकार, सरकारी अहकामात हवा में उड़ा दिए। टोबा टेक्सिंग में दुकानदारों ने सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से दिया गया रिलीफ अवाम तक नहीं पहुंच पाता। चीनी का सरकारी रेट 99 रुपए मुकर्रर किया गया, जबकि मार्केट में 130 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कारकर्दगी सिफर, इंतजामिया भी खामोश है। सरकारी रेट ते देंदे ही कोई नहीं, गरीब आदमी किधर नू जावे। हुकूमत ने कहा थी सस्ती मिलेगी, सानू तो 130 रुपये ते दुकाना के उत्तों पिंडा चो 140 रुपये मिलन दे। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया भी चीनी डीलर्स के सामने बेबस दिखाई देती है। इंतजामिया की जानिब से दुकानदारों को दुकान में नुमाया जगह पर चीनी का रेट लिखने का पाबंद किया गया था, जिसे हवा में उड़ा दिया गया। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निर्खनामे के मुताबिक चीनी की फरोख्त यकीनी बनाने का मुतालबा किया है, ताकि महंगाई के इस दौर में आम आदमी को कुछ रिलीफ मिल सके। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा अहमद नदीम, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग। अलाइट हॉस्पिटल फैसलाबाद की सर्जिकल इमरजेंसी में कायम ब्लड सेंटर अमला न होने के सबब बंद हो गया। मरीजों और तीमारदारों को खून के हसूल में मुश्किलात दरपेश हैं। अलाइट अस्पताल के सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में हामला खवातीन और ट्रैफिक समेत दीगर हादसात में जख्मी अफराद को फौरी खून की फराहमी के लिए ब्लड सेंटर बनाया गया था। शाही का कहना था, मेरा जख्मी भाई सर्जिकल इमरजेंसी में जेर इलाज है। खून की स्क्रीनिंग या बोतल के हसूल के लिए रीजनल ब्लड सेंटर जाना पड़ता है, जो बहुत दूर है। हुकूमत से गुजारिश है कि सर्जिकल इमरजेंसी वार्ड में वाक़या ब्लड सेंटर को फौरी फाल किया जाए। कोई भी क्रॉस मैच करवाने के लिए या ब्लड ग्रुप मैच करवाने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हालांकि जो यहाँ पे पहले ये बैंक था, यहाँ पे ब्लड बैंक, वहाँ पे काफ़ी सहूलत थी कि आदमी इमरजेंसी पे आया और उसका मसला हल हो गया। लेकिन हमारी यही इंतज़ामिया से कि ब्लड बैंक है जो वो यहीं पे बनना चाहिए। MS अलाइट अस्पताल डॉक्टर फहीम का कहना था कि ब्लड सेंटर इमरजेंसी में आए मरीजों को फौरी खून की फराहमी के लिए बनाया गया था। लैब टेक्नीशियन की ट्रेनिंग मुकम्मल करवा ली गई है। टेक्नीशियन तीनों शिफ्टों में ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देंगे। इंस्ट्रूमेंट और मशीनरी भी फराहम कर रहे हैं। सर्जिकल इमरजेंसी में ट्रामा का पेशेंट है, उसको बड़ी अर्जेंटली ब्लड रिक्वायर्ड है। उसके लिए हमने सर्जिकल इमरजेंसी में एक छोटा ब्लड यूनिट बनाया हुआ ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से बचने के लिए फौरी इंतज़ाम हो जाए। तो उसको हम मज़ीद फ़ाल बना रहे हैं। लैब टेक्नीशियंस जो है उनको हमने ट्रेन कर लिया है, उसकी तीनों शिफ्ट्स में ड्यूटीज़ हैं। सर्जिकल इमरजेंसी में ब्लड सेंटर बंद होने के सबब तीमारदारों को खून की स्क्रीनिंग और इसे हासिल करने के लिए रीजनल ब्लड सेंटर का रुख करना पड़ा है। कैमरामैन कमर बुटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत सूबा के 16 अजला के लिए 2 अरब से ज्यादा फंड जारी। फैसलाबाद की तहसील जड़ांवाला के लिए 18 करोड़ 30 लाख रुपए जारी किए गए। उधर वर्ल्ड बैंक के ताउन से जंग के लारी अड्डे की बहाली का मंसूबा, डिप्टी कमिश्नर ने PC1 की तैयारी के लिए 3 मई की डेडलाइन दे दी। अब सिटीज प्रोग्राम के तहत सूबे के 16 अजला के लिए 2 अरब से जायद फंड जारी। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के लिए 18 करोड़ 30 लाख जारी किए गए हैं। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत जंग के लिए 25 करोड़ 27 लाख, गोजरा के लिए 11 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए। इस हवाले से महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स के अजरा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा खजाना पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर को फंड्स के हवाले से मरासला अरसाल किया गया। वर्ल्ड बैंक के ताउन से जंग के लारी अड्डे की बहाली का मंसूबा, डिप्टी कमिश्नर ने PC1 की तैयारी के लिए 3 मई की डेडलाइन दे दी। शहर की जरूरत के मुताबिक वर्ल्ड बैंक से मजीद फंड्स लेने की तजवीज दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम नियाजी की जेर सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू होने वाले मंसूबे पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। वर्ल्ड बैंक के रीजनल कोऑर्डिनेटर अवैस यूसुफ दीगर ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तारिक हुसैन भट्टी, प्रोग्राम ऑफिसर गुलाम शबीर और दीगर भी शरीक हुए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने सिटी 41 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि PC1 का हतमी मुसव्वदा 3 मई को मुकम्मल करके हुकूमत पंजाब को अरसाल करेंगे। PC1 की बरवक्त मंजूरी के लिए तरजीह बुनियादों पर काम होगा। उन्होंने कहा कि शहर की जरूरत के मुताबिक वर्ल्ड बैंक से मजीद फंड्स लेने की तजवीज पर गौर जारी है। फैसलाबाद की मोहम्मद बिन कासिम लेबर कॉलोनी के रहायशी 35 साल बाद भी बुनियादी सहूलियात से महरूम। 3285 घरों के अलाटमेंट, 1500 के करीब रिहायशी भी आबाद हैं। तहा मजदूरों के लिए बनाई गई कॉलोनी में गैस दस्तयाब है, न बिजली और न ही साफ पानी।
उमराह के घरों में बिजली जाती नहीं, मजदूरों के घरों में गुज़श्ता 35 सालों से बिजली का नामो निशान नहीं। 1988 में मजदूरों के लिए खुलियावाला में बनाई गई मोहम्मद बिन कासम लेबर कॉलोनी में बिजली, गैस और साफ पानी का नामो निशान मौजूद नहीं। मकीनों का कहना था कि हुकूमत ने गुज़श्ता 35 सालों में मोहम्मद बिन कासम लेबर कॉलोनी को बुनियादी सहूलियात जिंदगी तक मुहैया नहीं की। ना तो कोई बिजली का इंतज़ाम है, ना पानी का इंतज़ाम है, ना गैस का इंतज़ाम है। ये लोग बहुत ही तंग दस्त लोग हैं जो इधर रहते हैं, गरीब लोग हैं जो इधर रहते हैं। गरीबों की आवाज़ कोई नहीं सुनता। कई हुकूमतें आईं और गईं, किसी ने मजदूर के बारे में सोचा ना ही कभी दौरा किया। हुकूमत लेबर कॉलोनी को बुनियादी सहूलियात देने में मुकम्मल नाकाम हो गई है। अहले इलाका ने मजीद कहा कि गैस, बिजली, पानी के बगैर गुजर बसर करना मुश्किल हो चुका है। सब तो जरूरी बिजली ते पानी ऐसा मुहैया किया जाए, इन्हां गरीब लोगों की कुछ बेहतरी हो जाए। सनती शहर को चलाने वाले मजदूरों को बुनियादी सहूलियात से महरूम रखना जुल्म के मुतरादिफ है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। पीएचए फैसलाबाद की नाअहली। गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके मदनपुर का वाहिद ग्रीन पार्क तबाहाली का शिकार हो गया। पार्क में घास की बजाय मिट्टी उड़ने लगी, बच्चों के झूले गायब, दीवारें टूट फूट का शिकार। नशा करने वालों का कब्जा, पार्क खंडर का मंजर पेश करने लगा। शहर के वस्त में गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके मदनपुरा का पार्क खंडरात में तब्दील। घास तो दूर, पौधे का भी नामो निशान नहीं। अहले इलाका कहते हैं हिफाजती दीवारों के जंगले नशई उखाड़ कर ले गए। मैं बेशुमार दरखास्तां दित्तियां, हर चीज कही वा, लेकिन इतने कुछ नहीं किया। वासा के खिलाफ काफी गए हैं, लेकिन इतने MN MP दोवें जानों धक्के, कोई काम नहीं करन डे, फराड ते धोखा। आ वे लो हाँ इतने घर ही अज तक लगा। अहले इलाका का कहना था इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरख्वास्त दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इंतजामिया जल्द अज जल्द पार्क की खूबसूरती बहाल करवाने के लिए इकदाम करे। पाइपलाइन वो खराब है, ये कोई ना इनसे हल नहीं हो रहा। वासा का काम है, क्या ख्याल कासरों को भी एप्लीकेशन 40 बंदों की दी हमने इधर से बनवा के। जो नाज़म है, बब्बी है, वो उसने भी कभी असर नहीं किया। ठीक है ना, ये बहुत माहौल ख़राब होता है। इधर कोई गोदाम भी है, इधर वो फैक्ट्री भी है, उनका भी पानी ग्राउंड में पड़ता है। पार्क कितना ख़राब हो चुका है। मेरे घर के सामने जो जंगला पानी, इतना बदबू, गंदा, मच्छर सारा कुछ जमा, जब किसी को कहते हैं तो एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। शहरी कहते हैं पीएचए हुक्काम तफरी फराहम करने के लिए बेहतर माहौल और पार्क में बच्चों के लिए झूले नस्ब करवाए। कैमरामैन अकील नकाश के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41, फैसलाबाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने अपनी रिहाइशगाह मदीना टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हर आने वाला दिन नवाज शरीफ की बेगुनाही का सबूत दे रहा है। रहनुमा नून लीग का मजीद कहना था, 2017 में GDP 5.7 पर थी। 2017 में रोटी 2 रुपए की थी, आज रोटी 20 की है। तलाल चौधरी का कहना था, चौधरी साहब अब डर क्यों रहे हैं? परवेज इलाही ने खुद को बचाने के लिए औरतों को आगे कर दिया, ये तो शहबाज गिल से भी ज्यादा डरपोक निकला। रहनुमा नून लीग का कहना था, 13 अगस्त को असेंबली टूटेगी, इलेक्शन इसके बाद ही होंगे। पाकिस्तान में जो सच बोलता है उसके करियर को तबाह कर दिया जाता है। सियासी कारकुन कमजोर हैं जिनको नाअहल कर दिया जाता है। उन्होंने अदलिया से ऑडियोज पर एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम मंकी पॉक्स वायरस से मुतालिक वर्कशॉप का इनेकाद। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ को मंकी पॉक्स इलामात, इलाज, हिफाजती तदाबीर और मरीज के नमूने हासिल करने के तरीक़ाकार से आगाही दी गई। मंकी पॉक्स वायरस से मुतालिक वर्कशॉप में प्रोफेसर आमिर शौकत, प्रोफेसर आमिर हुसैन, प्रोफेसर फरवा बतूल और डॉक्टर बिलाल अहमद ने खसूसी लेक्चर दिए। प्रोफेसर आमिर शौकत का कहना था, हुकूमती हिदायत पर वर्कशॉप का इनेकाद किया है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान में 3 मुकामात पर मंकी पॉक्स के टेस्टों की सहूलियात के लिए लेबॉर्ट्री मौजूद है। तालीम के साथ तरबियत भी लाजिम। फैसलाबाद में मजदूर डे की मुनासबत से खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में 1 मई मजदूर डे की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। तलबा को स्कूल में काम करने वाले क्लास 4 मुलाजमीन की इज्जत और एहतराम की तलकीन की गई। 3-4 सेक्शन इस तरह हैं। मैं उन असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ, राना नवाज सर, उनकी टीम को, जो बच्चों की तरबियत कर रहे हैं। हमने इन लेबर्स के जो राइट्स हैं वो बताना है कि इनके क्या हुकूक हैं। ये बेचारे सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, फिर ये देखें कितना खूबसूरत माहौल इन्होंने डेवलप किया हुआ है। ये इनके पीछे इनके हाथ होते हैं। तो आज इन बच्चों को ये एहसास दिलाया गया है और बच्चों को भी यानी कि महसूस हुआ है कि साफ़ सुथरा माहौल तो इन लोगों की वजह से। तो हमारे साथ तो आते हैं, पढ़ा के चले जाते हैं, लेकिन इनको साफ़ सुथरा माहौल बैठने के लिए जो दिया जाता है उनके पीछे इनका हाथ होता है।
طلبہ نے مزدور ڈے کی مناسبت سے اسکول ملازمین کو تحائف پیش کیے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ مالی، چوکیدار یا نائب قاصد یہ سبھی ان کے اسکول کو خوبصورت اور بہتر حالت میں رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے مزدور ڈے پر تحائف کا انتظام کیا گیا۔ لیبر ڈے کے حوالے سے ہم نے یہاں پہ تقریب کی ہے، ان کو ہم نے اپنے سب ورکرز کو گفٹ پیش کیے ہیں، ان کے ساتھ کیک کاٹا ہے، ہمیں بہت اچھا لگا ہے۔ آج ہم اسکول میں لیبر ڈے تھا، ہم نے اپنے انکلز کو تحفے دیا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ملازمین کا کہنا تھا کہ کام کرنا ان کی ڈیوٹی ہے، لیکن آج اساتذہ اور بچوں نے انہیں جو عزت دی اس پر وہ ادارے کے شکر گزار ہیں۔ ہم سب بھائی بہت خوش ہیں، ایز اے ورکر اتنی زیادہ رسپیکٹ دی گئی ہے اور اس ادارے میں ہمیشہ ملازمین کے رائٹس کو ہمیشہ پریفرنس دی گئی ہے اور ہمیشہ ہمارے پرنسپل صاحب نے کرسمس کے موقع پر اور دوسرے جو ہمارے مسلم بھائیوں کے مذہبی فیسٹیولز ہیں، تہوار ہیں، ان کے موقع پر ہمیشہ وہ ملازمین کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں اسکول میں کام کرتے بڑا مزہ آتا ہے، ہم انجوائے کرتے ہیں۔ جی آج کے دن ہم بہت زیادہ خوش ہیں۔ لیبر ڈے کے حوالے سے جو پروگرام آج ارینج کیا گیا اس کے بارے میں ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ جو سارا کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے رانا نوازی صاحب اور پرنسپل راؤ محمد اقبال صاحب کو جاتا ہے۔ پرنسپل راؤ محمد اقبال نے ٹیفٹا کے زیر اہتمام ریجنل سطح کے اسکل مقابلے اور پروجیکٹ نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ ٹیفٹا کے زیر اہتمام اسکل مقابلے اور پروجیکٹ نمائش کا انعقاد گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی سمن آباد فیصل آباد میں ہوا۔ ریجن بھر سے ٹیکنیکل کالجز کے طلبہ نے شاندار ورکنگ ماڈل پیش کیے۔ جو ہم نے یہ پروجیکٹ بنایا اس کا مین موٹیو یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہمارے جی سی ٹیز ہیں ان میں جتنی بھی اہم لیتھ مشینز ہیں وہ سی این سی ہے، ملنگ مشین جو بھی ہے وہ بہت کم ہے جی سی ٹیز جس میں یہ منی سی این سی ملنگ مشین ہو، جس میں پریکٹیکل کرنے کے لیے لڑکوں کو باہر دوسری یونیورسٹیز وغیرہ میں جانا پڑتا ہے۔ ہمارے پروجیکٹ کا نام اسمارٹ ہوم اپلائنسز کنٹرول سسٹم ہے۔ ہم اس کو موبائل فون اور ریموٹ دو طریقوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وائی فائی کے ذریعے ہم اس کو موبائل فون سے کنٹرول کرتے ہیں۔ طلبہ نے سورج کی حرارت سے پانی گرم کرنے، بجلی کی ٹرانسمیشن لائنوں کی آٹومیٹک فالٹ ڈیٹیکشن، ڈرائیونگ رسک کم کرنے کے لیے الارم سسٹم سمیت مختلف مسائل پر شاندار ماڈل پیش کیے۔ ہم ایک ایسا پروجیکٹ تیار کر کے لے کے آئے ہیں جو کہ رینیویبل انرجی کو استعمال کر کے یعنی سولر انرجی کو استعمال کر کے پانی کو گرم کرتا ہے۔ یہ ہمیں تقریباً 10 سے 15 ڈگری کا فرق دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کی کاسٹ بھی بہت منیمم ہے، تقریباً 15 سے 20 ہزار میں یہ تیار ہو جاتا ہے۔ صدر بورڈ آف مینجمنٹ ٹیوٹا انجینئر آسم منیر اور ریجنل ڈائریکٹر ٹیوٹا انجینئر محمد عثمان نے پروجیکٹ نمائش کا افتتاح کیا۔ طلبہ کے پروجیکٹس بارے بریفنگ لی اور ان کے کام کو سراہا۔ ہمارے اس نیچر کے جو اور یہ ورکشاپ لائے گی آپ یہ ڈسپلے کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کا انڈسٹری کے ساتھ انٹریکشن بڑھایا جائے، ان کو انڈسٹری کے مطابق ان کو نئی وہ ویژن تھیم دی جائے کہ ان فیوچر آپ اس نیچر کے جو ہے وہ پروجیکٹ بنائیں۔ اتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہم سکلز دے رہے ہیں، اب آج جو ایگزیبیشن ہوئی ہے انہی کے سکلز کو پریزنٹ کر کے یہ پروجیکٹ بنائے گئے ہیں اور اس میں روبوٹس تک بنے ہیں، ڈیفرنٹ سینسرز کو یوز کر کے پارکنگ کا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔